Good morning, students. I hope you are fit and fine. Today we start the topic the sum of n term of an AP. वो टॉपिक जो हमने पहले भी किया था बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा टॉपिक। आज हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, उसके कुछ पार्ट्स लेंगे और आपको वो 10 पार्ट आज करने हैं बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन a is equal to 5, d is equal to 3 and an is equal to 50, and we have to find the value of n. First of all we have to find the value of n. वेरी सिंपल, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं सारे। आपको क्या है, जो कंडीशंस है उनका यूज करके इक्वेशंस बनानी है और जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, a is 5, d is 3 and an. Here we take an. an is equal to 50. Then you tell me what is the formula of an. The formula of an is a plus n minus 1 into d. This is equal to 50. After that you put the value of a is 5. We have to find the value of n, so you take n is n. After that, what is d? The value of d is 3 and you solve this equation. This is a very simple question. 5 plus 3n minus 3 is equal to 50. 3n 5 minus 3 that is equal to 2. 3n is equal to 50 minus 2. 3n is equal to 48. n is equal to 16. First of all we have to find the value of n. The value of n is 16. After that we have to find here Sn. Sn भी हमें find out करना है बेटा। तो first of all you tell me what is the formula of Sn. The formula of Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. After that n, what is the value of n? We find the value of n is 16. Then you put 16. What is the value of a? A is 5, n is 16, 16 minus 1 that is 15, and what is the value of d? 3. Now you solve and calculate the value of Sn. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन से बस थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन जिनमें थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, वरना आप करते रहिए, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वी टेक वन मोर क्वेश्चन। एक पार्ट और है हमारे पास ऐसा ही, हम वो 2-3 पार्ट लेते हैं आज। आपको ये 10 पार्ट करने हैं आज। इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू गिवन d is equal to 5. This time S9 is equal to given 75 and we have to find the value of a and an. We have to find the value of a. For a mean first term. Now you tell me d is 5, then what is the formula of S9? SNN की जगह 9 है बच्चों इस बार। तो what is the formula of S9? Formula of S9 is 9 by 2 2a plus 9 minus 1, यानी n minus 1 होता है, 9 है तो 9 minus 1 into d. d mean 5 और you take S9 is equal to 75. Now you solve it and find the value of a. This is 9 by 2 2a plus 9 minus 1 8 8 5 is 40 75 2a plus 40. This is 9 by 2 in multiply, then on right side 2 is on multiply, 9 on divide. Okay, now you solve this equation and find the value of a. This is a very simple question. After that we have to find 9 a9. इसके बाद हमें अगर a मिल जाए तो a9 फाइंड आउट करना है। What is the formula of a9? a9 मतलब an का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। तो a9 का हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d. पुट द वैल्यू, a की वैल्यू जो निकले आप पुट कर देना, d आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन। दिस इज आवर आई थिंक थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन an is equal to 4, mean nth term is given to be 4 and common difference is equal to 2 and one more value Sn.
sum of n term that is equal to -14 and we have to find the value of n and a. n और a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा. सो यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an. फॉर्मूला ऑफ an, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट an a plus n minus 1 into d, or this is equal to 4. In this formula we have given d is equal to only d. We have three values a, n and d, and only one value is given, that is d. So you put here a plus n minus 1 into d. d की वैल्यू कितना पुट कर दो 2. After that a plus 2n minus 2 equal to 4. a plus 2n is equal to 6. This is our first equation. Like third chapter linear equation in two variable. उसकी तरह हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें से एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है. इन थर्ड चैप्टर x और y में दो इक्वेशन होती थी, बट हेयर वी हैव इक्वेशन इन a एंड n. यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं, a और n है. अब एक बार इसको और ले लेते हैं और यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? n by 2 2a plus n minus 1 into d, this is equal to -14. What is the value of n? n ही हमारे पास, तो n को हम n रखेंगे. 2a, a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, n भी नहीं है, बट d है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2. थोड़ा सा टिपिकल बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा. इन सारे में से आप 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तभी इस 2 से वो कैंसल आउट हो सकता है. पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a में से 2 कॉमन लिया a, और ये बचेगा n minus 1 और इज इक्वल टू -14. ओके, आफ्टर दैट मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए. 2 कैंसिल विद 2, दिस इज n into a plus n minus 1 equal to -14. You multiply by n, na plus n square minus 1 minus n, यानी na n multiply n square, n multiply 1 minus n is equal to -14. यहाँ थोड़ा सा टिपिकल बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया बेटा एक, और एक लीनियर था, यानी हमारा बिल्कुल थर्ड चैप्टर के जैसा नहीं हुआ. बट थर्ड चैप्टर में आपने एक सीखा होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है? तो यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई है, यहाँ से आप a की वैल्यू बताइए मुझे क्या आएगी. a यहाँ रख लीजिए और 2n को उधर ले जाइएगा, तो 6 माइनस 2n उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 minus 2n. So you put here the value of a. a की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस, यहाँ a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू -14. 6 मल्टीप्लाई n 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14. -2n स्क्वायर और n स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये -n स्क्वायर हो जाएगा. 6n माइनस n लिखेंगे तो 5n हो जाएगा, और प्लस 14 इधर ले आइए. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. बाय आप फैक्टराइज कर लो यहाँ पर, या फिर आप इसको बाय डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा करके n की वैल्यू निकाल लो. तो अगर हम एक बार इस माइनस इसको खत्म कर दें, यहाँ से माइनस खत्म, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो फैक्टर थोड़े आसानी से बन जाएंगे आपके. जैसे हमने इसको सबसे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसके फैक्टर आप बना लो. 7 और 2 फैक्टर बनेंगे, यानी n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0. यू टेक कॉमन फ्रॉम हियर n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इक्वल टू 0. n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0. If multiplication of two number is 0, either first 0 or second 0. If we take this is equal to 0, n is equal to 7. If we take this is equal to 0, n is equal to -2. तो यहाँ पर n की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 7 और -2. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी बच्चों. टर्म हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, कुछ भी हो सकती है.
तो n की वैल्यू हम 7 लेंगे, -2 नहीं ले सकते, इट इज नेगेटिव, नेगेटिव टर्म कभी नहीं होती। तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 7 वैल्यू ले लेंगे n की। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और a यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो। n को अगर 7 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, 6 - 14 दैट इज इक्वल टू -8। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा सिर्फ इक्वेशंस है, नया कोई भी टॉपिक नहीं है। थर्ड फोर्थ चैप्टर का मिक्स थोड़ा बहुत यूज, और उसके बाद आपका जो nth टर्म और SN टर्म का फॉर्मूला बताया उसी पर डिपेंड आज का टॉपिक है। तो आज आप थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट, 3 पार्ट मैंने करवा दिए, 10 पार्ट कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से कॉल करें, व्हाट्सअप कर दें मेरे नंबर पे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। इसके बाद भी जो क्वेश्चंस हैं थर्ड के बाद वो सारे इसी पर डिपेंड है, बट वो स्टेटमेंट में ये डायरेक्टली डिजिट में लिखे गए हैं, इतना फर्क है। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम आगे चल करके इसी के फोर्थ क्वेश्चन से लेकर के, तब तक के लिए बच्चे ये काम कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।